प्रोटीन एंड फैट, और एक और हार्मोन आता है कॉर्टिसोल. So these three hormones, they help in, they are secreted during lactation. Now write down the heading. These are three hormones, hormone secretion during lactation. एक है growth hormone, thyroxine और cortisol. Okay, welcome back, Janvi. Janvi, we are doing chapter number 3. So I'll repeat all the chapters. Am I audible, Janvi? Actually, we are doing chapter 3. और इसमें आप लोग टॉपिक्स लिखो एंड आई रिवाइज इट फ्रॉम नोट्स ओनली. और फोर्थ चैप्टर जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. फोर्थ चैप्टर के लिए प्लीज डू नॉट मिस योर क्लासेस, क्योंकि टर्म्स बहुत डिफरेंट है और आप लोगों को समझ तभी आएंगी जब आपको कोई बताएगा इन टर्म्स के बारे में. बट इसके साथ आई डू वन मोर टॉपिक. तो राइट डाउन डिसऑर्डर्स. प्लीज राइट डाउन द हेडिंग. Disorders. Disorders related to human reproduction. Ma'am, when will we finish this chapter? When will we? I didn't get this you. Chapter. Finish or revise? Ma'am, finish. Finish तो हो गया बेटे. मैं I'm doing extra topics only. NCERT से हो चुका है. So we are doing Okay, extra topics. Okay. तो okay. तो पहले आप टर्म लिखो ओलिगोस्पर्मिया. Oligospermia. Oligo means होता है less, spermia means sperm. When sperm count is less than normal. Oligospermia. अब it is not always कि females are to be blamed for not having a child. ये डिटेल आप लोग देखोगे इसमें कि हर बार फीमेल्स ही ब्लेम्ड होती हैं फॉर नॉट हैविंग अ चाइल्ड. इट मे बी बिकॉज ऑफ द ओलिगोस्पर्मिया. ओलिगोस्पर्मिया क्या होता है? व्हेन द स्पर्म काउंट इज लेस देन नॉर्मल. स्पर्म्स उतने है ही नहीं. अगर आपको याद हो, एक सीमेन में मिलियंस और बिलियंस स्पर्म्स होते हैं, जिनमें से सिर्फ कुछ 100 रीच करते हैं टिल फेलोपियन ट्यूब, और उनमें से सिर्फ एक जो है फ्यूज करता है विद एग. तो जानवी, आई विल रिपीट एवरीथिंग, डोंट वरी. I'll revise all the chapter. I'll repeat all the chapter once again for you. तो oligospermia. Okay. तो oligospermia जो है, it is the when sperm count is less. तो कई बार ये इनफैक्ट मूवीज भी इसके ऊपर कई बनी है. अगर किसी ने वो मूवी सुनी है आयुष्मान खुराना क्या, आई डोंट रिमेम्बर द नेम. चलो, I'll get back. I'll tell you. तो उसमें it is based on this topic only, oligospermia. Sperm count जो है ना, that is less than the normal. फिर उसके बाद next term देखो, एजोस्पर्मिया. मूवी का नाम था विकी डोनर. सुना है किसी ने उस मूवी का नाम? Yes, anyone? Okay, एक स्टूडेंट ने सुना है. Yes, ma'am. Yes, तो it is based on this only, oligospermia. उनमें जितने भी मेल्स थे वो स्पर्म्स नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे थे, तो मेल, कुछ मेल्स होते हैं, they donate their sperms. So it is different thing, but it is important in from science point of view. आप सब स्टडी कर रहे हो साइंस, तो there is nothing to hide, और आप समझोगे तो it is important. तो एजोस्पर्मिया is okay, almost everyone. Okay, azoospermia is nearly absence of sperms. कहते हैं sperms आए ही नहीं, बने ही नहीं. Near absence of sperms. लिख लिया? Near absence of sperms. Next term लिखो, cryptorchidism.
This term is new for everyone. Cryptorchidism. अगर आपको याद हो, मैंने एक बात बताई थी कि एलिफेंट्स, जो एलिफेंट्स होते हैं, they in the case of elephants, if you can see this scrotum क्या बाहर होती है? No, ma'am. No, they are inside the stomach. तो याद है ना, मैंने बताया था there is no pouch outside the body, hanging outside the body. तो इसमें जब ब्रीडिंग सीजन होता है, then the pouches, मेल में टेस्टिस जो है they descend outside, otherwise they remain inside the abdomen. I hope everything is clear. कि in case Yes, ma'am. yes, in case of certain animals, the testes, they remain inside the stomach. They do not descend into the they do not descend outside the body. But if they fail to descend, अगर आना ही वो नहीं आ पाई reproductive age में, तो फिर इस phenomenon को बोलते हैं cryptorchidism. एक process है कुछ animals में जिनमें testes सिर्फ कुछ महीनों के लिए बाहर आती हैं. Otherwise, in case of human male, सबको पता है testes are located outside the body in scrotum. Human males में testes जो हैं, it is present outside the body in case of human, inside pouch called scrotum. लेकिन इसमें एक स्पेशल चीज है जिसमें अगर वो टेस्टिस डिसेंड ना हो पाए, when testes fail to descend in scrotum. Angelina, should I repeat all the terms? Yes, ma'am. Okay. देखो बच्चे, ऊपर स्क्रीन पे लिखा हुआ डिसऑर्डर्स ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो पहली डिसऑर्डर में है ओलिगोस्पर्मिया. ओलिगोस्पर्मिया मींस, ओलिगो मींस लेस, when sperm count is less than normal. Oligospermia, sperm count is less than normal. दूसरा है एजोस्पर्मिया, near absence of sperm, मतलब कहते हैं almost nil. कहाँ मिलियंस होने चाहिए, कहाँ बिल्कुल ही खत्म. Cryptorchidism, when testes fail to descend in scrotum. There are certain animals, तो इसमें मैंने आपको एग्जांपल दी थी elephants की. In case of elements, you will see कि testes are not outside the body. तो testes होती कहाँ है? Testes होंगी पेट के अंदर. They are present inside the abdomen. They descend only during reproductive period. जब इन्होंने रिप्रोड्यूस करना है, कॉपुलेट करना है फीमेल के साथ, तब ये डिसेंड होंगी, टेस्टिस पाउच में आती हैं. अदरवाइज दे रिमेन इन एब्डोमेन. अब अगर ये नहीं आ पाई टेस्टिस बाहर बॉडी के, तो इस प्रोसेस को when they fail to descend, it is known as cryptorchidism. When testes fail to descend. When testes fail to descend in scrotum. Next disease is quite painful, again in case of males. Inguinal. अभी तक हम फीमेल्स की बीमारियों के बारे में सुनते आ रहे थे. इस चैप्टर में कुछ आपको ऐसा सुनने को मिलेगा. In case of males, it is inguinal hernia. hernia सुना है किसी ने? hernia? Yes, ma'am. Okay. Almost everybody must have heard about this hernia. hernia में क्या होता है, जो मेल्स के पाउच में, ओके, स्क्रोटम में इंटेस्टाइन का कुछ पार्ट अगर डिसेंड कर जाए, तो you can understand it is very painful. If this part of intestine descends into the scrotum, तो खाना नहीं खा पाएंगे. It will be highly painful. When this loop of intestine gets into the scrotum, or sometimes these testes, they move up into the abdomen. So you can just imagine how painful it is. In case of males, it causes unbearable pain. So what doctors do is they put a net, जैसे जाली बोलते हैं जिसको, they put a net in this region ताकि ये testes भी ऊपर ना जाए और intestine का part भी नीचे ना आए. This is how operation is done, and it is very painful. You can very well imagine if the part of intestine is getting into this part, so it is difficult to digest, it is difficult to eat also, it is difficult to move also. So inguinal hernia में लिखो loop of intestine getting into scrotum. Loop of intestine
getting in scrotum. ये टर्म्स एनसीईआरटी में नहीं गिवन है. Inguinal hernia, loop of intestine, getting in scrotum. Next है gynecomastia, GYNAE comastia. Gynecomastia, again it is in case of males. It is enlarged breast in males. कई आपने देखे होंगे मेल्स हैं काफी भारी होते हैं और या फिर पतले होते हैं बट उनकी ब्रेस्ट हैवी होती है. कि किसी ने कभी देखा है ऐसे? Even in fact you can see it in the case of sumo wrestlers also. But they are very powerful. Sumo wrestlers को compare करना it's very tough क्योंकि they have power. Yes. So enlarged breast in case of males. Enlarged breast in case of males. Okay. Okay, many have heard about that also. So it is gynecomastia. Next is hysterectomy. Next term लिखोगे. मैंने अगर आपको याद हो बताया था जब भी किसी चीज के आगे टॉमी लग गया तो वो क्या वर्ड आ गया? कटिंग. टॉमी वर्ड डॉग्स का हम रखते हैं, काटते हैं, लेकिन इसमें हम साइंस में जब भी टॉमी वर्ड आएगा कटिंग, सर्जिकल रिमूवल. तो हिस्टेरेक्टोमी होगी रिमूवल ऑफ यूट्रस. इट इज वेरी कॉमन दीस डेज. किसी ने सुना है किसी के आसपास में या कहीं पे भी फैमिली में किसी के रिमूवल ऑफ यूट्रस? Yes, ma'am. हाँ, इट इज कॉमन नाउ बिकॉज वही कैंसर से बचाने के लिए sometimes this uterus is removed and it is very common these days. Reason being irregular menstrual cycle है, menstrual cycle और या तो overflow हो जाते हैं या underflow है, तो उसमें it leads to formation of clots inside the uterus and it generally occurs after post pregnancy or in later stages. But if it is not taken care of, it can be dangerous. So क्योंकि uterus cancer होता है वो संभालना मुश्किल है, तो in that case whole of the uterus is removed and it is common. Next is menopause. ये सबने सुना हुआ है. menopause, pause का मतलब हो गया stoppage of menstruation. सभी को पता है. It occurs at the age of 45 to 55 years. It occurs at the age of 45 to 50 years, 45 to 55. Next is इसी को एक और नाम देते हैं क्लाइमेटेरिक पीरियड. कहते हैं सीजनल पीरियड है ये क्लाइमेटेरिक पीरियड. नेक्स्ट टर्म आती है मिनार्क. व्हाट इज मिनार्क? First menstruation. यस, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन. फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन. लेट्स सी, अगर किसी ने ध्यान से अगर चैप्टर सुना है तो उसको ये याद होगा मैंने ये टर्म बताई थी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी. व्हाट इज दिस? Once the loop fallopian tube में embryo develop होना शुरू हो जाता है. यस यस. अनफॉर्चुनेटली कई लोगों में क्या होता है कि बेबी होना चाहिए यूट्रस में, इस रीजन में बच्चे को होना चाहिए इम्प्लांट, लेकिन वो यहीं रह जाता है और यहाँ पूरा ग्रो होना शुरू हो जाता है और पता चलता है लेटर स्टेजेस में जब वो 1 से 2 kgs का हो जाता है तब. बट नाउ दीज डेज टेक्नोलॉजीज आर वेरी एडवांस. रेगुलर स्कैनिंग्स होती रहती हैं तो इट कैन बी easily noted. But earlier it used to be, even in our times it was very common. I have seen my friends suffering from this ectopic pregnancy और fully developed fetus को फिर remove करना पड़ता है and it is highly painful, same as that of abortion. So ectopic pregnancy, when pregnancy womb is embryo is growing inside this fallopian tube. Next heading लिखो, teratology. What is teratology?
शायद मैंने टेरेटोलॉजी बताया था आप लोगों को. ऑलॉजी मीन स्टडी. मैम ड्रग्स Yes, very good. The teratology is study of teratogens. मैंने आपको बताया था कि अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है तो उसको ना ड्रग्स लेने चाहिए, ना उसको कैफीन मतलब स्मोक नहीं करनी चाहिए, टबैको निकोटीन नहीं होना चाहिए. तो ऑल दीज सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एज टेरेटोजेंस. क्योंकि उससे क्या होगा, जो एम्ब्रियो है वो उसकी ग्रोथ डेवलप नहीं होगी और बच्चे में डिफेक्ट्स होंगे फॉर श्योर. तो टेरेटोजेंस, teratology, study of teratogens and their effects. Study of teratogens and their effects. Done, everyone? yes Yes, ma'am. Okay. yes ma'am Okay. अच्छा, इसी के साथ आप लोग एक टॉपिक लिखो. वैसे तो it is related with this next chapter, but I would like to attach it from here only because काफी important topic है और इसके ऊपर हम MCQs भी करेंगे. Last time मैंने share किए थे. Please आप लोग सभी try करो. Write down heading STD. STD is what? Sexually transmitted diseases. Yes, sexually transmitted diseases. They are also called as venereal diseases. VENERAL, venereal diseases. So STDs, they are the diseases which occur only during the during the sexual intercourse. So that is why they are called as sexually transmitted. क्या ये diseases किसी का used toy, किसी के used कपड़े, उनसे transfer हो सकती है? Yes or no? Yes, anyone? Yes. Tell me. Any idea? No. अच्छा, अगर किसी को इन्फेक्शन है तो इफ यू आर यूजिंग दी undergarments of मतलब exchanging undergarments, got my point? The personal garments, if you are sharing, yes, it can be transferred because it's a kind of a bacteria. And exposure is because क्योंकि exposure इतना ज़्यादा इसलिए है कि बैक्टीरिया बॉडी ओपन है वहां से. इन केस ऑफ फीमेल्स इट इज टोटली एक्सपोज्ड टू द एनवायरनमेंट. आप देखते हो, मैंने आपको बताया था कि फीमेल का जो ओपनिंग है, एक्सटर्नल ओपनिंग है, वो दैट इज वेजाइना. तो उसको प्रोटेक्शन तभी होगी जब वो बंद हो, क्लोज्ड हो. तो इनके इवन इफ यू यूज पर्सनल गारमेंट्स अगर किसी के एक्सचेंज हो रहे हैं, इवन इन केस ऑफ टॉल, आप किसी होटल में जाते हो, वहां इन्फेक्शन है, यूज्ड शीट्स हैं, बेड शीट्स हैं, या फिर कोई infectious region है, then also even in the washrooms we get these diseases. So STDs generally they are considered to be transferred only from infected person to the normal person via sexual contact. तो venereal diseases हैं. अब इनके बारे में Ansh, we have just now started with this topic. Ansh-Raj, so STD Yes, sir. और ओके, venereal diseases. STD को दूसरा नाम बोलते हैं venereal diseases. तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लेमाइडियासिस. इनके बारे में आप लिखोगे. सबसे पहले लिखोगे कॉजेटिव एजेंट. कॉजेटिव एजेंट का नाम है क्लेमाइडिया. आप पूरा लिखोगे. कॉजेटिव एजेंट क्लेमाइडिया.
trichomatis. Chlamydia trichomatis. Chlamydiasis, causative agent, Chlamydia trichomatis. It is the most common bacterial diseases. Most common bacterial STD. It is the most common bacterial STD. Now coming to symptoms. In case of males, symptoms में अगर हम ध्यान दें, in case of male, and it is very common, तो अभी आप लोग सुनोगे तो आप लोगों को हैरानी होगी. Alina, write down the first disease name. Chlamydiasis. Chlamydiasis का causative agent है chlamydia. Chlamydia trichomatis causative agent है, इसको पूरा note down करना. Chlamydia causative agent है ये. Causative agent पूरा लिखोगे. CA means causative agent. Chlamydia trichomatis, most common bacterial STD. Symptoms in case of male, it is painful urination. Urine pass करते हुए burning sensation होना. And thick pus-like discharge from penis. कुछ तो टॉपिक्स हैं जो आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं. आई थिंक इट शुड बी डिस्कस्ड विद ऑल द स्टूडेंट्स फ्रॉम +2, इवन इफ द स्टूडेंट इज फ्रॉम आर्ट्स और कॉमर्स, बिकॉज कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को नहीं आइडिया बच्चों को. And in case of male, it is painful urination or thick pus-like discharge from penis, and it can lead to sterility. Just imagine एक छोटा सा bacterial disease sterile कर सकता है पूरी लाइफ के लिए, गाल देगा, वो खत्म कर देगा उस organ को. Just imagine. In case of female, again same painful urination, but it causes inflammation. पस डाल देगा. Inflame करना मतलब पस डालना. Inflammation in cervix, uterus, fallopian tube. Just imagine ये छोटा सा बैक्टीरिया पूरा ऑर्गन गाल दिया, पूरे ऑर्गन में पस पड़ गई. और ऐसा जो पूरा का पूरा reproductive system can infect whole of the reproductive system are known as PID. They are called as PID. Pelvic inflammatory diseases. Pelvic. मैम Yes. मैम कई बार ये जो सर्विक्स कैंसर होता है वो भी एसटीडी है. क्या चीज बच्चे? मैम सर्विक्स कैंसर. हाँ मुझे कैंसर, यस, बहुत सारी चीजें कैंसर का ना, जब हम पढ़ेंगे टॉपिक तब आपको समझ आएगा कैंसर क्या रीजन से आता है. ओके. यस मैम. हाँ कैंसर का डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे. तो प्लीज राइट डाउन pelvic inflammatory disease. Done? Yes ma'am. Yes ma'am. So ये सारी diseases हो गई. In case of male, it causes painful. In case of male, painful urination, thick pus-like discharge from penis can lead to sterility. In case of female, inflammation in cervix, uterus, or fallopian tube.
and can infect whole of the reproductive system. It can cause PID. PID is pelvic inflammatory disease. अभी हम पढ़ेंगे ऐसा होता क्यों है. नेक्स्ट डिजीज का नाम लिखो. गोनोरिया, ये शायद आप लोगों ने सुना भी हो. GONORRHOEA. गोनोरिया, इट इज कॉज्ड बाय कॉजेटिव एजेंट का नाम लिखो. निसेरिया, NEISSERIA. गोनोरिया, GONORRHOEA. Neisseria gonorrhea. It is a gram negative bacteria. याद होगा हमने पढ़ा था कुछ बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव होते हैं, कुछ ग्राम नेगेटिव बिकॉज ऑफ द स्टेन. ग्राम साइंटिस्ट का नाम था, उसने बताया कि कुछ बैक्टीरिया दे टेक अप द स्टेन, दे आर कॉल्ड एज ग्राम पॉजिटिव. जो स्टेन को नहीं लेते दे आर कॉल्ड एज ग्राम नेगेटिव. तो इसीलिए इसको बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव. ये ग्राम नेगेटिव है, डिप्लोकोकस है, क्योंकि इसमें से नीट में क्वेश्चन आना ही आना है 100% एसटीडी पे. तो इसीलिए हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे. Symptoms, it is more common in case of males. Symptoms more obvious in males. तो इसमें होता क्या है? Inflammation of mucous membrane. जहां पे भी इन्फ्लेम की बात आ गई मतलब वो गलना शुरू हो गया, पस पड़ रही है. Inflammation of mucous membrane. Of urinogenital tract, मतलब यूरेथ्रा. यूरेथ्रा में इन्फ्लेमेशन हो गई. यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट. और मेल्स में इसलिए कॉमन है बिकॉज ये बहुत सारे बॉयज ये फील करते हैं बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन. Burning sensation during urination. And if it is in females, it may lead to arthritis. देखो रिप्रोडक्टिव से कहाँ पहुंच गया? बोन्स में. It may cause sterility. Sterility मतलब cannot become mother. Or it may reach to your eyes in case of females. और उसको नाम देते हैं गोनोकोकल ऑप्थेल्मिया. आंखें जो है बिल्कुल वाइट फ्लूइड सिक्रीट करना शुरू कर देती हैं, हर टाइम पानी रहेगा आईज में से, तो वाइट म्यूकस सिक्रीशन. तो गोनोरिया में जो इसका कॉजेटिव एजेंट है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, निसेरिया गोनोरिया. और मेल और फीमेल में आपको बता दिए क्या क्या इसके सिम्टम्स हैं, और दवाई का नाम भी लिख लो. इसमें इसका ट्रीटमेंट है, इनफैक्ट लास्ट वाली में भी लिखना था ट्रीटमेंट. इसकी मेडिसिन का नाम लिखो एम्फिसिलिन और पेनिसिलिन साथ में. याद है मैंने आपको, जिसने लास्ट टाइम पढ़ा है उसको याद होगा कि पेनिसिलिन इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक. जहां किसी दवाई से इलाज नहीं होता वहां पेनिसिलिन बॉडी में इंसर्ट करते हैं. इट किल्स ऑल दी गुड और बैड बैक्टीरिया विद इन द बॉडी. तो इट्स अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक. ओके, तो पेनिसिलिन. और अगर याद हो तो पेनिसिलिन इज द फर्स्ट ड्रग दैट वाज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. Yes. यस. और बड़ी हैरानी की बात है ये, इसमें तो गोनोरिया में तो आ गई, पेनिसिलिन ने काम कर लिया, बट इन केस ऑफ क्लैमाइडियासिस पेनिसिलिन इज नॉट इफेक्टिव. इसमें जो है ट्रीटमेंट जो दिया जाता है, ट्रीटमेंट के लिए दवाई का नाम लिख लो एरिथ्रोमाइसिन. एरिथ्रोमाइसिन, ERTHRYOMICIN. एरिथ्रोमाइसिन. इसमें पेनिसिलिन का इफेक्टिव है ही नहीं.
Yes, can I move to next page? Yes, ma'am. Okay, okay. नेक्स्ट थर्ड डिजीज का नाम लिखो साइफिलिस. पॉजिटिव एजेंट लिखो इसका नाम ट्रेपोनीमा पैलेडियम. ट्रिपोनिमा पैलेडियम. और ये एक ऐसी बीमारी है जो बच्चे में आ सकती है फ्रॉम मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. इसीलिए ऐसी डिजीज को हम नाम बोलते हैं क्रॉस प्लेसेंटल, जो प्लेसेंटा को भी क्रॉस कर ले. क्रॉस प्लेसेंटल डिजीज. तो बच्चे पैदा होते ही उसमें भी स्टेजेस हो सकते हैं. ये सिम्टम्स दे आर इन डिफरेंट स्टेजेस. सबसे पहले आएगी प्राइमरी स्टेज. प्राइमरी को हम लिखते हैं 1 डिग्री भी लिख लेते हैं. तो प्राइमरी स्टेजेस ड्राई हार्ड सोर्स, छाले पड़ जाते हैं जैसे ड्राई हार्ड होते हैं सोर्स. जिनको बोला जाता है कैंकर, CHANCERS. 90% होते हैं जेनाइटल एरिया में और 10% होते हैं लिप्स और फिंगर्स पे. तो पहली स्टेज तो आएगी ड्राई हार्ड सोर्स. छाले पड़ेंगे, बिल्कुल ड्राई होंगे, हार्ड होंगे, जनरली ऑन द जेनाइटल एरिया और मे बी ऑन द लिप्स और फिंगर्स. सेकेंडरी स्टेज में आएगा, सेकेंडरी स्टेज को आप लिखोगे 2 डिग्री. लेजन्स, कट्स पड़ने शुरू हो जाएंगे ऑन म्यूकस मेम्ब्रेन. लेजन्स ऑन म्यूकस मेम्ब्रेन. माइल्ड फीवर, loss of appetite. थर्ड टाइप में आएंगे टर्शरी स्टेज. टर्शरी स्टेज में होगा बैक्टीरिया spreads to other organ या internal organs. और ये बच्चे में भी आ रहा था. बच्चे में ऐसा क्या करेगा, ये क्रॉस प्लेसेंटल है तो अनफॉर्चुनेटली मेंटल रिटार्डेशन या मेंटल डिसऑर्डर लिख लो. They should be cured immediately. Just write down. And बच्चे इनमें से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा 100% in your NEET. So it is important to write down all the points. Can I move to next page now? Yes, ma'am. Okay. Next type is, next heading देखो हेपेटाइटिस. ये तो आप सभी ने सुना हुआ है हेपेटाइटिस के बारे में.
हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस लिख लो, टाइप बी। वायरस का नाम लिखो, HBV, और it is a double-stranded DNA virus. Symptoms: nausea, vomiting, liver infection. हेपेटाइटिस लिवर से ही वर्ड आ रहा है, हेपेटिक वर्ड इज फॉर लिवर, तो लिवर पूरा गल जाता है, लिवर सिरोसिस, लिवर सड़ जाता है जैसे ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करने से। और it may lead to excretion of bilirubin and biliverdin, same as in jaundice, जैसे jaundice में appear होते हैं bilirubin and biliverdin। और इसका जो टेस्ट है that is Australian antigen test। और इसकी दवाई जो है बचपन से ही देनी शुरू कर देते हैं बच्चों को, पैसिव इम्यूनिटी। वैक्सीनेशन जब करवाते हैं ना, दैट इज नोन एज पैसिव इम्यूनिटी। तो वैक्सीनेशन बच्चे को जब पैदा होता है तब लगती है, 1 मंथ का होता है तब लगती है, 6th मंथ में लगती है, 0 day, 1 month and after 6 months। This is all about hepatitis। हेपेटाइटिस में लिवर का इन्फेक्शन हो जाता है, जनरली बच्चे पैदा होते हैं तो उन्हें लिवर इन्फेक्शन हो सकता है। Can I move to next page now? Yes. Okay. अब थोड़ी सी खतरनाक बीमारी है, एक है जेनाइटल हर्पिस। जेनाइटल हर्पिस, हर्पिस का मतलब होता है जनेऊ। अगर आप लोगों को पता है, जो पंडित होते हैं वो एक धागा पहनते हैं जो उनकी बॉडी पे ऐसे सराउंड करता है, यस, शोल्डर Yes, तक। ma'am. तो वो Yes. जो, अच्छा, ये जो डिजीज है ये इसी एरिया में, ऐसी जैसे जनेऊ होता है ना, ऐसी शेप में, तो ऐसी शेप में जहां जहां वो धागा होता है, ऐसा नहीं, उस धागे से कोई रिलेशन नहीं है, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल कि इसी शेप में ब्लिस्टर्स होने शुरू हो जाते हैं, छाले पड़ते हैं ऐसे, एज इफ देयर इज अ थ्रेड, पूरी एक लाइन, एक चेन बना देते हैं, एंड इट इज हाईली पेनफुल। क्योंकि ब्लिस्टर्स जो हैं, अगर आप टी शर्ट पहनोगे, कपड़े पहनोगे, तो वो पस वाले होते हैं, पानी वाले होते हैं, कई बार खून के हो जाते हैं, तो इट causes itching, irritation, you cannot sleep, you cannot move, you cannot walk, and the जो इसकी दवाइयाँ होती हैं, दे आर ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग, इट मे डैमेज योर लंग्स और लिवर, लिवर पे सीधा अटैक करती हैं दवाइयाँ, तो दिस कंडीशन इज वेरी सीवियर। तो जेनाइटल जो हर्पीस है, अब आप सोच सकते हो, ये तो मैंने अब बॉडी पे ऊपर बताया, जेनाइटल एरिया मतलब हमारे जेनाइटल ऑर्गन्स में, इन केस ऑफ मेल पेनिस के आसपास, इन केस ऑफ फीमेल वेजाइनल रीजन के अंदर। तो दिस इज वेरी डेंजरस एंड इट इज कॉज्ड बाय टाइप 2 वायरस। ये नाम लिख लो इसको, टाइप 2 हर्पीस, टाइप 2 हर्पीस सिंपलेक्स वायरस। तो इसका नाम लिख लो, टाइप 2 हर्पीस सिंपलेक्स वायरस।
मनप्रीत बेटे आप ये नोट डाउन करो। जिसमें आप हेडिंग लिखोगे जेनाइटल हर्पीस। मैंने अभी हर्पीस के बारे में बताया, इट्स डिजीज। जैसे फिर से आई रिपीट, जैसे पंडित होते हैं वो पहनते हैं ना जनेऊ, जैसे अपने शरीर पे एक धागा पहनते हैं, काला धागा, सूत का धागा होता है। तो ये इससे कुछ रिलेशन नहीं है, बट हर्पीस जो ये वायरस है ये भी इसी रीजन में बॉडी के ऐसे अपीयर होते हैं ब्लिस्टर्स, ऊपर फ्रंट पे भी और पीछे भी, जैसे जनेऊ किसी ने पहना हो इसीलिए इस शेप में। बड़ी अजीब सी चीज है कि इसी शेप में क्यों होते हैं, एक धागा सा बन जाता है, तो उसको बोला जाता है हर्पीस। बट अब अगर आगे नाम दे दिया जेनाइटल हर्पीस, तो ये सेम इसी लाइन जो बनती है, इट इज इन द जेनाइटल एरिया। इन केस ऑफ मेल्स पीनल पेनिस एरिया के आसपास ऐसी लाइन बन जाती है ब्लिस्टर्स की, छालों की। एंड इन केस ऑफ फीमेल वेजाइनल रीजन के अंदर ऐसे ब्लिस्टर्स बन जाते हैं। और ये छाले मैंने आपको बताया, दे आर वेरी पेनफुल। दे आर ब्लिस्टर्स, दे मे बी ऑफ वाटर, दे मे बी ऑफ ब्लड। तो जैसे ही आप टी शर्ट पहनोगे, कपड़े पहनोगे, तो इट इज हाईली पेनफुल। ना कोई कपड़े पहन सकता है, ना कोई चल सकता है, ना कोई सो सकता है, बिकॉज दे आर वेरी पेनफुल एंड दे वाटर कीप्स ऑन ओजिंग आउट फ्रॉम दीज। और ये अगर जेनाइटल एरिया में आ गए तो जेनाइटल एरिया में दे प्रोड्यूस फाउल स्मेल। तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है ये अगर आ जाए जेनाइटल एरिया में। इट कॉजेज प्रोड्यूसेस फाउल स्मेल, इट कॉजेज इचिंग, इट प्रोड्यूसेस म्यूकस सिक्रीशन, और पानी पानी हमेशा रहता है। तो ये जो कॉज करता है उसका वायरस का नाम भी मैंने लिख दिया, इट इज हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। नेम ऑफ दिस वायरस इज हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस, HSV। और मैंने अभी आपको बता दिया है कि इसके सिम्टम्स क्या होंगे। सिम्टम्स लिखो, watery blister on genitalia, watery blisters on genitalia, पानी वाले छाले आ जाते हैं। And during parturition, During parturition. during parturition, this virus may pass to newborn, बच्चों में भी हो सकता है। Virus may pass to newborn. मैम STDs जो होते हैं वो मदर बॉडी से बच्चे में पास हो सकते हैं ना? नहीं नहीं बच्चे, सिर्फ जिनके आगे मैंने लिखा ट्रांसप्लेसेंटल, जैसे ये साइफिलिस, बाकी नहीं, बाकी नहीं, सिर्फ ये क्रॉस प्लेसेंटल है। अब ये अभी एक और बता दिया आपको, हर्पीस। तो जेनाइटल हर्पीस में जो ये ब्लिस्टर्स आते हैं, हर्पीस एक लाइन में आते हैं, ये पास हो सकते हैं बच्चे में, बट वो भी बर्थ के बाद, ड्यूरिंग पार्चुरेशन, ये not when the baby is inside the mother body. Next disease का नाम, can I move to next page? Yes. Yes. Okay. Genital warts. Warts होते हैं जो तिल हो जाते हैं, जैसे तिल बनते हैं ना, समझ रहे हो, मोल्स। तो warts में ये ब्लिस्ट मतलब भी ऐसे रेड और ये पैचेस बन जाते हैं, स्किन टैग्स इनको बोलते हैं। जैसे अभी स्किन में एक आप समझ सकते हो पाउच, एक थैली बन जाती है और वो डार्क हो जाए, तो दिस इज कॉल्ड एज जेनाइटल वॉट। इसके लिए जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म का नाम लिखो, HPV, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस पॉजिटिव एजेंट है। और वॉट्स मैंने अभी बताया, ये बहुत कॉमन है जेनाइटल वॉट्स। इसके लिए होता क्या है, वाटरी अपीयरेंस, वही म्यूकस in external genitalia. Now this can cause
कैंसर ऑफ सर्विक्स. कोई भी चीज इरिटेट करेगा ना, बॉडी में इचिंग होती रहेगी, देन कैन कॉज कैंसर. क्योंकि जो ये जो छाले हैं, ये स्किन टैग्स ऐसे देखो थैली सी बनती है, इस थैली को हम बोलते हैं ट्यूमर. ट्यूमर इज व्हाट इज कैंसर. तो ये कैंसर फॉर्म कर सकते हैं, ट्यूमर फॉर्मेशन. दिस इज व्हाट इज जेनिटल वॉट. एक्सक्यूज मी मैम. यस. मैम मेरी ग्रैंडमदर को भी सर्विक्स कैंसर था, बट मैम उन्होंने जब बताया था तो जैसे मेनोपॉज के बाद भी अगर मेंस्ट्रुएशन हो तो भी वो सिम्टम होता है ना कैंसर का. हाँ बच्चे, ये बहुत सारी चीजें हैं, अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में रिप्रोडक्टिव हेल्थ में. तो आपको आइडिया होगा कि देयर आर सेवरल रीजंस फॉर दिस. एंड कौन सा कैंसर कॉमन है इन इंडिया. ब्रेस्ट है, सर्वाइकल है, मेल्स में कौन सा है, लंग्स है, ओरल है, प्रोस्टेट है, कौन सा. यू विल बी अमेज्ड टू हियर. वर्ल्ड की थ्योरी अलग होगी, वर्ल्ड में कुछ और होगा और इंडिया में कुछ और होगा. एंड इट इज बिकॉज ऑफ आवर जो लिविंग जो कंडीशंस हैं. सो नेक्स्ट राइट डाउन एड्स. नेक्स्ट डिजीज का नाम लिखोगे आप, एड्स. एंड यू ऑल नो व्हाट इज एड्स. एड्स इज एक्वायर्ड इम्यूनो deficiency syndrome. तो ये इम्यून की डेफिशिएंसी हुई. बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आधे से ज्यादा बच्चे समझते हैं ये बीमारी है, तो ये आपने एक्वायर की है अपनी इम्यूनिटी की डेफिशिएंसी. इट्स अ सिंड्रोम. सिंड्रोम अलग होता है, डिजीज अलग होता है. विल स्टडी व्हाट इज अ सिंड्रोम. सिंड्रोम होता है जिसकी वजह से और बीमारियां लगती हैं. एंड इसके जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है उसका नाम क्या था, HIV. HIV which is human immunodeficiency virus. It is single stranded RNA. It's a retrovirus. And symptoms में लिखो mild fever, mild infection. इसका सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसका पता नहीं चलता. मैम सिम्टम्स रिपीट करना. सिम्टम्स में लिखो mild fever, mild infection. Mild fever, mild infection. Next, loss in weight. Loss in weight. Mild fever, mild infection, loss in weight. But infection can become severe. सबसे पहला केस जो था यूएसए में पाया गया in the year 1981, and in first case in India was seen in 1986. First case in US in 1981, first case in India in 1986. And you all know World AIDS Day कब करते हैं observe? 1st December. December 1st is considered as world's, पता है ना सभी को, AIDS Day. किसी को पता है इस बारे में, वर्ल्ड एड्स डे? नो मैम. नो, कोई बात नहीं. वर्ल्ड एड्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 1st December एंड इट हैज अ सिंबल. इसके लिए आप ऐसे रिबन आपने देखा होगा, रेड रिबन पहना जाता है.
और अगर ये रिबन पिंक कलर का हो इसी शेप में, देन इट इज फॉर कैंसर। ये सिंबल्स हैं। एड्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस चैप्टर में। एड्स से कभी भी डेथ नहीं होती, एड्स के की वजह से और बीमारियां आती हैं जिससे डेथ होती है, बिकॉज हमारी इम्यूनो डेफिशिएंसी, हमारी इम्यूनिटी हो जाती है 0। और धीरे धीरे जब इम्यूनिटी 0 हो जाती है, कोई भी हल्का सा बुखार, हल्का सा जुकाम, हल्का सा कोई भी इंफेक्शन बॉडी में एंटर करेगा, इट विल कॉज डेथ। इसीलिए ऐसे पेशेंट्स को आइसोलेट कर देते हैं, एंड इट इज अ डेडली डिजीज। आई एम टेलिंग यू कि अगर आप कल को डॉक्टर्स बनते हो तो यू शुड ask your patients to be aware of this disease, because this disease is very common these days. और फिर से हैरानी की बात सुनना, this disease is common in पंजाब। सर्वे हुआ तो एक फेयर में एक मेला लगा था, उसमें सर्वे किया गया नियर होशियारपुर। तो वहां देखा गया कि जो लोग इन्फेक्शन, वहां ऐसे ही किसी ने टेंट लगाया कि विल टेस्ट फॉर दिस HIV, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो सभी ने टेस्ट करवाया, एंड उसमें देखा गया 70% ऑफ द चिल्ड्रन एंड देयर मदर्स वर इन्फेक्टेड। तो बहुत हैरानी की बात हुई कि हाउ कम एक विलेज में जो रहते हैं, दे आर नॉट, how come they are getting the infection, and it is so common in Punjab. So you can just imagine, it nearby cities is hamari hai, so it must be common here also, but now it is controlled, and we are, doctors are going deep into the villages, and they are making people aware of this disease. आपने देखा AIDS awareness camp चल रहे हैं, because इससे death होनी for sure है ही है जिसको होता है, और लेकिन पता नहीं चलता हमें। और हैरानी की बात यह है, हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा आप लोगों को नॉलेज होगी इस चीज की। बट अगर ये एड्स जो है, अब ये नहीं कि अगर आप किसी के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट बनाते हो तभी दिस डिजीज कैन बी स्प्रेड, इवन इफ द पर्सन इज इन्फेक्शियस एंड उसका ब्लड आपके ब्लड्स के कांटेक्ट में आया, एंड इट हैपेंस वेरी कॉमनली। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हो, सपोज यू आर ट्रैवलिंग इन अ बस, तो बस में कोई ऐसा आपके आसपास पेशेंट है और उसका ब्लड जो है कहीं पे चोट लगी और वो ब्लड उसका लगा हुआ था, और आपको हल्की सी चोट लग गई और ब्लड उसका हल्का सा टच कर गया आपको, तो you'll be infectious, you'll become HIV positive. So just imagine, we are all are using public toilets, public transports, so we are all also prone. And it is not always कि आपका अब बच्चे का कोई कसूर नहीं होता, बच्चे को आता है मदर से। इवन इफ यू आर यूजिंग इन्फेक्शियस नीडल्स, और ये फिर से पंजाब में वो बात करें, वहाँ फैल क्यों रहा है, बिकॉज दे आर यूजिंग नीडल्स फॉर ड्रग्स। सो दिस इज द रीजन फॉर इट स्प्रेड। और इसकी अवेयरनेस, कल को मैंने आपको बोला कि आप डॉक्टर्स बनोगे तो दिस इज योर ड्यूटी टू टेल एवरी पेशेंट दैट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर सोसाइटी बाय नॉट स्प्रेडिंग दिस डिजीज। और कोई अगर ऐसा पेशेंट आता है तो उसको अछूत नहीं समझते, उसको आइसोलेट करते हैं, बट उसकी केयर करते हैं, ठीक है। तो आई गेस ये सभी को समझ आ गई है डिजीजेस। यस यस मैम। यस मैम। यस बच्चों, अब थोड़ा सा हम टॉपिक, एक डिफरेंट टॉपिक पढ़ेंगे, तो आप लोग सब समझ। ट्रीटमेंट किसका बेटे? एड्स का? एड्स का कोई इलाज ही नहीं है बच्चे, प्रिवेंशन है, सिर्फ इससे बच सकते हैं हम। बचने के लिए बस अपने आप को अनप्रोटेक्टेड सेक्स, मतलब नॉट मोर देन टू, मतलब नॉट मोर देन वन, जैसे पॉलीगैमी इज नॉट अलाउड। शादी मतलब एक के साथ ही कांटेक्ट में रहो, फिजिकल कांटेक्ट में, फिर उसके बाद सिरिंजेस जो है उनको इमीडिएटली डिस्कार्ड कर दो। एंड जहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, जैसे चंडीगढ़ में आप रह रहे हो, फॉर्चुनेटली, इवन इन पंजाब, इवन इन हिमाचल, इवन इन हरियाणा, जहाँ पे लोग पढ़े हुए हैं, वहाँ पे वो क्या करते हैं, दे आस्क डॉक्टर्स टू डिस्ट्रॉय दैट सिरिंज इन फ्रंट ऑफ यू। सो यू आस्क दैट डॉक्टर टू डिस्ट्रॉय, और यहाँ पे इंसिनरेटर्स आ रहे हैं, अगर आपने किसी ने ध्यान दिया हो तो सिरिंज आपको इंजेक्शन लगाया, तो वो सिरिंज को एक चैम्बर में डालते हैं जिसमें आवाज आती है यस मैम, वहाँ से वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। यस, इमीडिएटली डिस्कार्ड हो जाती है, चर्न एकदम जल के खत्म हो जाती है। तो वहां तो ठीक है, आप इनफैक्ट
सिरिंजेस कॉमन नहीं होनी चाहिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हम करवाते हैं, अब हम लोग देखते हैं ब्लड कैंप्स बहुत लगे हैं, इवन आई एम ए रेगुलर डोनर, तो अगर मैंने मेरा अगर ब्लड में मुझे जैसे आई एम ऑन मेडिकेशन या if I have some kind of a disease and I'll not tell the doctors or the persons that I am diseased, और वो ब्लड पता नहीं कितने लोगों को जाएगा, सो इट इज आवर ड्यूटी, मॉरल ड्यूटी, है ना। तो दिस इज द रीजन। अब किसी के ब्लड चढ़ा है, खून चढ़ा है, अब किसी को क्या पता, क्योंकि वो टेस्ट ही नहीं होते, जनरली इट इज कंसीडर्ड दैट पर्सन इज हेल्दी, दैट इज व्हाई दिस पर्सन इज गिविंग ब्लड। और जब ये बीमारी का पता चलता है 6-7 साल बाद, जब ये अपीयर होती है तो बहुत देर हो चुकी होती है। सो दिस इज द रीजन कि हमें अपने आप को बचाव करना है, तो अपने आप क्लीन करो, और पब्लिक टॉयलेट्स यूज करते हैं वहां पे आप बहुत ध्यान से, इवन इफ देयर इज, इफ यू फाइंड सम काइंड ऑफ ब्लड इज देयर, दरवाजे पे लगाया कहीं पे, तो डोंट ट्राई टू टच इट, एंड इफ यू हैव ओपन वोंड, ट्राई टू कवर दैट वोंड। सबसे इम्पोर्टेंट तो आपकी वोंड में नहीं लगना चाहिए। अब ये नहीं है कि खून लगा हुआ था, बोल्ट आप कुंडी लगा रहे थे तो वहां पे, excuse me, तो वो बोल्ट आपने किए तो उसमें ब्लड लगा था तो आपके हाथ पे लग गया तो आपको इन्फेक्शन होगा। नो, इट इज नॉट दैट, क्योंकि वो तो ऊपर लगा था, लेकिन अगर आपकी वूंड लगा हुआ है, आपके कट है, और आपने उस कट पे आपके ब्लड चला गया, तो हो सकता है। एंड ये केस आया था, इट वाज वेरी कॉमन ड्यूरिंग यस्टरइयर्स कि किसी काफी फेमस पर्सनालिटी को, बॉलीवुड पर्सनालिटी को हुआ ये एड्स, तो उसके जो आसपास लोग थे उनको भी हो गया। तो इवन मेल्स को और फीमेल्स को, अब ऐसा तो नहीं है कि उसने सेक्सुअल कांटेक्ट बनाया और बाद में पता चला तो ये हुआ कि उसके साथ जो को स्टार्स थे या उसके साथ जो पीछे डांस कर रहे थे, उनके किसी के ईयरिंग में, ईयर डैंगलर में, मतलब उसके ईयरिंग, समझ रहे हो, ईयरिंग में, ईयरिंग का उससे कट लग गया, और उसने सिर्फ उसकी उनकी मदद की थी, और ब्लड से ब्लड कांटेक्ट हुआ, तो दैट पर्सन बिकेम इन्फेक्टेड। तो इसीलिए तब से सबको बोला गया कि टच नहीं करना when you are on your work place। तो दिस इज द रीजन कि वहां पे अब थोड़ा सा अपने आप को सेफ्टी सेक में, तो वो सिर्फ उसका हाथ टच करने से ब्लड, उसका ब्लड से ब्लड टच हुआ तो इन्फेक्शन आ गया। तो इट्स अ डेडली डिजीज एंड वी शुड प्रोटेक्ट आवरसेल्फ। अवेयरनेस इज द ओनली थिंग। सिर्फ आप अवेयर कर दो लोगों को, अपने आप बच जाएंगे हम। ओके, अब थोड़ा सा हम टॉपिक डिफरेंट पढ़ने लगे हैं, और आप लोग पहले सुनोगे, आई विल मेक यू राइट डाउन मे बी इन द नेक्स्ट क्लास। अब बहुत सारे लोग होते हैं जिनको बच्चे नहीं होते, तो हम एक फिनोमिनन करते हैं जिसका नाम है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। अब आप हर हॉस्पिटल में जाओ तो वहां पे ना आईवीएफ लिखते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। आईवीएफ किसने सुना हुआ है? आईवीएफ, आईवीएफ बहुत कॉमन है, टेस्ट ट्यूब बेबीज बहुत कॉमन है, दिस इज टेस्ट ट्यूब बेबी ओनली। तो हर सेकेंड हॉस्पिटल इज प्रोवाइडिंग दिस टेक्निक। अब ये कॉमन क्यों हो रहा है? पहले तो 12-12 बच्चे होते थे, पहले तो सभी के घर में मिनिमम 10 चाइल्ड है ना। अगर आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछो, किसी के हैं मोर देन 10? ऑलमोस्ट सबके, यस। कहते हैं दादाजी के 10 भाई थे, 8 बहनें थी, ऐसे। इज इट? यस, एवरीवन। Yes, ma'am. और अब क्या हो गया, अब एक एक दो दो बच्चे हैं, वो भी प्रॉब्लम होती है, वो भी हम टेस्ट ट्यूब में करवा रहे हैं। इट इज नॉट पॉसिबल टू कैरी जस्ट अ सिंगल चाइल्ड थ्रू आउट देयर लाइफ। व्हाट इज हैपनिंग दीस डेज? It is because of diet, it is because of stress, it is because of pollution. My dear friends, you'll be amazed, आप लोग भी कल को पेरेंट बनोगे तो प्रॉब्लम्स ये आ रही हैं कि we are not getting sufficient diet, we are not getting clean air। अब जो पेरेंट सारा दिन ट्रैफिक में रहेगा, आई एम टॉकिंग अबाउट मेल्स। अब दिल्ली में अगर जाके रहते हो, गुड़गांव में रहते हो, तो वहां पे आप कितना कितना टाइम यू रिमेन इन ट्रैफिक, और ट्रैफिक में पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, तो वो ज्यादा इनहेल करते हैं, उससे क्या होता है, स्पर्म मोटिलिटी रिड्यूस होती है। इन केस ऑफ फीमेल, ओवरवर्क, मॉर्निंग में फटाफट घर का काम किया, निकल गए, ऑफिस का काम किया, घर आए, सो गए बिना खाए। तो दिस इज द रीजन दैट पीपल आर नॉट एबल टू कैरी देयर यंग वंस। तो एक टेक्निक हमने फॉलो की है, दैट इज कॉल्ड एज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ART, जिसमें हम 4 चीजें पढ़ेंगे। एक चीज जो मैंने लिखवा दी आपको, टेस्ट ट्यूब बेबीज। दूसरा आता है गिफ्ट। गिफ्ट इज, ये हम डिटेल में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।
Gift is gamete intra-fallopian transfer. In this case, gametes are introduced into the body. जैसे फीमेल के पास एग नहीं है तो एग डोनेट कर देते हैं. बहुत लोग हैं, आप हैरान हो जाओगे, कई लोग स्पर्म डोनेट करते हैं. अभी बताया विकी डोनर मूवी, तो उसमें मूवी में यही दिखाया, इज अ स्पर्म डोनर. जिन लोगों के स्पर्म्स नहीं बन रहे थे, स्पर्म डोनेट कर रहा था. कई फीमेल्स होती हैं जो एग डोनेट कर देती हैं. इट्स अ गुड कॉज बिकॉज यू आर गिविंग लाइफ टू समवन. जिन लोगों को पैसों की जरूरत होती है, दे डू दिस गिफ्ट. अब गिफ्ट में ऐसा नहीं है कि वो कुछ गिफ्ट लेके जाते हैं, रैप करते हैं. इट्स गिमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, नाम दे दिया इसको AI. AI is artificial insemination. Artificial insemination, sperms are inserted into female vaginal tract via syringe, and it is done in case of cattle. Cattle में अब अगर मुझे, आप लोगों को पता है, हम +2 में पढ़ेंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग है +2 बायो. +2 में आप पढ़ोगे कि स्विट्जरलैंड में जो काउज होती हैं, वहाँ की और यहाँ की कैपेसिटी मिल्क प्रोड्यूसिंग की कितनी कम है, कितना डिफरेंस है. तो अगर आप वहाँ की बुल का स्पर्म लेके यहाँ की फीमेल्स को इंसर्ट करते हो, दैट इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. The sperms from single male can be inserted into up to 200 females. एक मेल का स्पर्म 200 फीमेल्स में इंसर्ट किया जा सकता है via syringe, and this process is known as artificial insemination. This is done in case of humans also, but it is rare in human. It is common in cattle. Next आता है ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन. एग के अंदर हम स्पर्म इंजेक्ट करेंगे वाया सिरिंज, तो ताकि सीधा जाके उसमें, एंड इट इज डन अगेन outside the body of female. So these are the techniques which we can use. We'll study these in detail in the next class. So अगर हम छोटी छोटी चीजें मैं I'll discuss क्योंकि we have time. तो कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी आया कहाँ से, कब शुरू हुआ. तो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी जो थी उसका नाम था लुइस जॉय ब्राउन. उस बच्चे का नाम, गेस व्हाट गर्ल थी बॉय? गर्ल. Louis Joy Brown. In the year 1978 by Dr. Stephen, the first test tube baby was a girl child, world first test tube baby. और इंडिया की जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी है, that was also a girl. और उसी ईयर में इंडियन डॉक्टर्स ने भी ट्राई कर लिया था, फॉर्म किया, और ये बॉम्बे के काफी बड़े हॉस्पिटल में, और उसको नाम दिया गया दुर्गा, जो बच्चे का नाम था, अंडर दी ऑब्जर्वेशन ऑफ डॉक्टर मुखर्जी. तो ये कुछ चीजें जो ये फर्स्ट क्वेश्चन आता है, वर्ल्ड फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी बाय डॉक्टर स्टीफन एंड डॉक्टर एडवर्ड. बच्चे का नाम था लुइस जॉय ब्राउन इन इंडिया 1978, एंड सेम ईयर इंडिया's फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी वाज आल्सो प्रोड्यूस्ड, जिसका नाम रखा गया दुर्गा, या कुमहर्षा भी कई बार बोल देते हैं, बट इट्स दुर्गा. और गिफ्ट में आपको बता दिए, जहाँ पे गेमीट्स नॉर्मल नहीं प्रोड्यूस होते, वहाँ गेमीट्स को ट्रांसफर किया जाता है. इन केस ऑफ फीमेल एग, इन केस ऑफ मेल इट इज स्पर्म. तो ऐसी कौन सी टर्म है जिसमें स्पर्म्स कम प्रोड्यूस होते हैं? नंबर ऑफ स्पर्म इज लेस. हमने आज टॉपिक शुरू ही उससे किया, ओलिगोस्पर्मिया. तो इन केस ऑफ ओलिगोस्पर्मिया, sperms are introduced artificially. Okay, so we'll discuss this topic in details in the next class. I hope everybody is clear, क्योंकि आपको आज जो important STDs वो पढ़नी जरूरी थी, और इसका रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हम पढ़ेंगे इनका इलाज क्या है, इससे हम कैसे बच सकते हैं. ठीक है, we'll do this topic in next class. I'll start with the next chapter in next class, और इसकी रिवीजन भी हम स्टार्ट कर देंगे पूरी यूनिट की in the month of June. Okay, so take care everyone. You can leave now. Thank you. If anyone has a doubt, can